So now we will start with the page number 33, and it is part 2 of this chapter and section history. Okay, so we started the topic the circle of justice. And then we have the second topic that we will take afterwards, not now. Okay, so let us understand that topic which we have already started in part 1, and now we'll start with the page number 33. Keep the following additional details in mind. Now see, in the circle of justice, what used to happen, like let us revise that. The important part for king was soldiers, and the king had to give the salary to the soldiers, and the salary was depend on the revenue which was given by peasants. And when the peasants can give that kind of when the peasants can give the revenue when they are happy and prosperous, and when they will become prosperous and happy when the king's behavior is honest and he is doing justice with each and every person of his kingdom. Okay, keep the following additional details in mind. The authors of Tawarik lived in cities and hardly ever in villages. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. Now here what used to happen, जो ऑथर थे तवारिक वो सिटीज में रहते थे, दिल्ली मेनली दिल्ली में रहते थे, एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, वो विलेजेस में नहीं रहते थे पर दिल्ली में ही रहते थे. दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज, वो उन्होंने अपनी हिस्ट्रीज भी लिखी थी सुल्तान के लिए कि शायद हिस्ट्री लिखने के बदले उनको कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. अब ये जो authors जो थे वो advice देते थे rulers को on the need to preserve an ideal social order based on जो social orders जो रहते थे, जो राजा को देने होते थे अपने लोगों को, वो किसके बेस पे होता था? बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन. नाउ व्हाट इज बर्थ राइट? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. Privileges claimed on account of birth. For example, people believe that nobles inherited their rights to govern because they were born in certain families. If you are born in certain family, then these are your rights. सो बर्थ राइट जो होता था उनके बेसिस के ऊपर ये जो ऑथर्स थे रूलर्स को गाइड करते थे. जेंडर डिस्टिंक्शंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर डिस्टिंक्शन? सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड मेन. यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू विमेन. सो देयर वर डिस्टिंक्शंस in previous time between men and women, and these distinctions were giving that kind of information that men are superior. Their ideas were not shared by everybody. उनके जो ideas थे वो share नहीं होते थे सबके through. Now here we have page number 33 and paragraph 2. In 1236, Sultan Iltutmish's daughter Razia became Sultan. अब ये टाइम पे रजिया जो थी वो क्या हो गई? वो बन गई सुल्तान बन गई. द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज recognized that she was more able and qualified than all her brothers. अब वो ज्यादा एलिजिबल थी उनके ब्रदर्स के कंपैरिजन में, तो उनको चुना गया एज अ रूलर. She was a lady, and the lady ruler first time was becoming the king, but he was not comfortable at having a queen as ruler. और उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था ऐसे रूलर बन के. Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently.
उनके जो नोबल्स थे वो भी हैप्पी नहीं थे. शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर, सिंस 1236 टू 1240, 4 साल तक ही वो सिर्फ एज अ रूलर रह सके, क्योंकि other people were not happy with her, so she was removed from the throne in 1240. What Minja-e-Siraj thought about Razia? Now here we have a particular person, Minja-e-Siraj, what he was thinking, or what was his thought about Razia. Minja-e-Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God. अब उनके व्यू थे कि ये जो रजिया थी, उनके जो ऑर्डर्स थे वो सोशल ऑर्डर जो भगवान ने बनाए थे लोगों के लिए, उनके भी खिलाफ थे. इन विच women were supposed to be subordinate to men. जिसमें क्या था कि वुमेन जो थी वो सबऑर्डिनेट थी मैन की. He therefore asked, उन्होंने पूछा, in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, क्योंकि उनका जो अकाउंट है वो मैन का जो कॉलम था उसके अंदर नहीं आ रहा है, how did she gain from all of her excellent qualities? तो वो अपनी जो क्वालिटीज है अच्छी वाली वो कैसे ले सकती है, गेन कर सकती है. On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. अब जो कॉइन्स थे और इंस्क्रिप्शंस थे उस टाइम के, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो किसकी डॉटर है. दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रम देवी, और वो रुद्रम देवी जो क्वीन थी उनके खिलाफ थोड़ी चीजें थी. ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल. ये जो रुद्रा देवी थी वो कौन से डायनेस्टी की थी? वो काकतीय डायनेस्टी की थी. पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, आज का जो आंध्र प्रदेश है वहां के काकतीय डायनेस्टी की रुद्रा देवी किंग थी. उनके खिलाफ कुछ ये जो रजिया थी उन्होंने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कुछ ऐसा मेंशन किया था जो उनके खिलाफ था. ओके. अनदर क्वीन डीडा रूल्ड इन कश्मीर. जो दूसरी क्वीन थी उन्होंने भी कश्मीर के ऊपर रूल किया. हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग. इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर, एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स. उनके सब्जेक्ट्स ने उनको बहुत अफेक्शनेट टाइटल दिया था जो था डीडा. डीडा दैट मीन्स दीदी. हमारी जो बड़ी सिस्टर जो होती है हम उनको दीदी बोलते हैं, राइट. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द पेज नंबर 34. Here we have new topic, from garrison town to empire, the expansion of. We have page number 34. New topic, from garrison town to empire. The expansion of the Delhi Sultanate. Okay. यहाँ पे जर्नी बताई गई है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर. द एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब वो दिल्ली सल्तनत है उसका एक्सपांशन कैसे हुआ, वो एरिया बढ़ा कैसे. हियर वी हैव मैप टू मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश. बहुत सारे मेजर सिटीज जो किसने लिए, शमसुद्दीन जो थे उन्होंने ले लिए. ओके, सो लेट अस रीड द पैराग्राफ.
In the early 13th century, the control of the Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. अब क्या हुआ अर्ली 13th सेंचुरी में कंट्रोल जो था दिल्ली सुल्तान का वो किसके रेयरली वेंट बियॉन्ड, वो बहुत रेयरली बियॉन्ड गया फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। फोर्टिफाइड का मतलब होता है मिलिट्री, जो मिलिट्री टाउन थे वो ऑक्यूपाइड हुए गैरिसन्स के, और बहुत रेयरली वो इनके कंट्रोल में आया। ज्यादातर कंट्रोल किसके हाथ में था? दिल्ली सुल्तान के हाथ में ही था। कौन सी सेंचुरी में? 13th सेंचुरी में। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड, उन्होंने बहुत रेयरली कंट्रोल किया सुल्तान ने हिंटरलैंड को। हिंटरलैंड यानी कि द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री अवे फ्रॉम द रिवर, जो रिमोट एरिया होता है रिवर से दूर, उसको बोला जाता है हिंटरलैंड। सिटी का जो हिंटरलैंड एरिया था वो बहुत रेयरली कंट्रोल हुआ सुल्तान से। एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर फॉर सप्लाईज, और बहुत रेयरली डिपेंडेंट था। किसके ऊपर डिपेंडेंट था? ट्रेड के ऊपर, पेमेंट के ऊपर, और प्लंडर फॉर सप्लाईज। ओके, और बहुत अलग अलग सप्लाईज के ऊपर डिपेंड था। कंट्रोलिंग गैरिजन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब ये जो गैरिसन टाउन था उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली, जो डिस्टेंट बंगाल था और सिंध जो था उसमें जो गैरिसन टाउन थे उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। डिसओबीडियंस जैसा बिहेवियर या तो वॉर, ये सब चीजें जो हो रही थी, इवन बैड वेदर कुड स्नैप, बहुत खराब वेदर था, वो सब चीजें क्या कर रही थी? कम्युनिकेशन को ब्रेक कर रहे। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. अब क्या हो रहा था? दिल्ली की जो अथॉरिटी थी, दिल्लीज अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज, उनको भी एक चैलेंज दिया गया था बाय मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भी दिल्ली की जो अथॉरिटी थी उनको भी चैलेंजेस बहुत आती थी। एंड बाय गवर्नर्स हु रेबेल्ड, मतलब बहुत ओपोज करते थे। एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस, सुल्तान की कोई भी वीकनेस को बहुत ज्यादा ओपोज करते थे। द सुल्तानत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस। अब सल्तनत थी वो बहुत बेयरली ये सारी चैलेंजेस को सर्वाइव कर पा रही थी। इट्स कंसोलिडेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin खलजी और मोहम्मद तुगलक। अब ये जो सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करने की प्रोसेस चल रही थी वो किसके शासन के दौरान स्ट्रॉन्ग हुई? यहाँ पे हमारे पास दो नाम है, एक तो है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा है मोहम्मद तुगलक। तो ये जो दो रूलर थे उनके अंडर में ये प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हुआ। Then next we have the first set of campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. पहला कैंपेन कब हुआ? The first set of campaigns campaign along the internal frontier, अंदर अंदर जो फ्रंटियर यानी कि बॉर्डर थी उसके अंदर एक कैंपेन हुआ पहला। किसका हुआ? सल्तनत का, जिसका एम क्या था? एट कंसोलिडेटिंग द हिंडरलैंड्स, मतलब जो वीक सारी प्रोसेसेस हो गई थी उनको स्ट्रॉन्ग करना हिंडरलैंड की, ऑफ द गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन में जो ऐसे एरिया थे रिवर से दूर, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का फर्स्ट कैंपेन वहां पे हुआ। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डॉग। ये कैंपेन चल रहा था उस दौरान क्या